Who will stop this Liverpool super team yaar after having a record breaking Mo Salah season under Arne Slot? Arne Slot ने अपनी आधी टीम फेंकने का पूरा निर्णय ले लिया है. They are getting in new players in almost every position. We've already seen Kerkez come in, we've seen Frimpong come in, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, and बात हो रही है एक और फॉरवर्ड की if Luis Diaz leaves and Mark Guehi coming in at Liverpool. It's a crazy summer for Liverpool. It's a crazy summer by FSG and ownership जिसको काफ़ी गाली पड़ती थी for not supporting the managers, especially Jurgen Klopp. But Arne Slot को काफ़ी अच्छा support मिल रहा है. The team is being rebuilt not only for his needs but also exactly how Edwards, Hughes and Ward want. Hugo Ekitike to Liverpool, 95 million overall. I think 90 plus 5 का total package deal है, which takes it to 95 million according to Fabrizio. And I'll be honest, I think it's a slight overpay. एक 10-15 million का definitely overpay है. 80 million would have been like the upper limit if you want to get a highly rated young talent जिसका upside बहुत है statistically data wise but output actually कम है. But Liverpool have got their man, and as much as you might criticize the price point, Hughes का एंड एडवर्ड्स का एंड वार्ड का जो रिक्रूटमेंट लिस्ट है अभी तक, आपने जितना भी उनका रिकॉर्ड देखे प्रीवियसली, काफ़ी अच्छा है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब लिवरपूल को एक गोलकीपर चाहिए था, क्लॉप एंड सम अदर लिवरपूल प्लेयर्स वर एक्चुअली इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग जैक बटलैंड एट लिवरपूल, बट एडवर्ड्स इंसिस्टेड एंड दे गॉट Alisson from Roma, and you can see Alisson has turned out so well for Liverpool. 7 years उन्होंने complete कर लिए अपने Liverpool में, and he's turned out to be one of the best keepers in the world. So this is another Edwards-led recruitment. एक 23-year-old जिसके लिए अगर आप stat sheet देखोगे has only had one breakout year in terms of football output. इनसे पहले जो he was on loan at Frankfurt from PSG wasn't really a great year, never really got on at PSG. At times he was fine. बट ऐसा क्यों है कि लिवरपूल इतनी भारी रकम देने को तैयार हो गया है फॉर हुगो एकिटिके? अगर आपको पता नहीं है तो लिवरपूल का एक्चुअल प्राइमरी टारगेट वाज अलेक्जेंडर इसाक. नाउ वेदर इट्स न्यूकासल आर रिफ्यूजिंग टू सेल और हिज प्राइस इज वे टू अनअटेनेबल, अगर आप हुगो एकिटिके एंड अलेक्जेंडर इसाक का चार्ट देखोगे, साइड बाय साइड डेटा चार्ट देखोगे, दे आर एक्चुअली टू वेरी सिमिलर फॉरवर्ड्स. मतलब अगर आप इस चार्ट को देखोगे, इट्स में ब्लू वाले जो एरियाज है आर बाय हुगो एकिटिके एंड द ऑरेंज वंस आर बाय अलेक्जेंडर इसाक. ना ऑफ कोर्स इस चार्ट के हिसाब से एकिटिके एक्सपेक्टेड असिस्ट्स, की पासेस, असिस्ट्स, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस वगैरह में इसाक से ज़्यादा बड़े हैं. बट ऑफ कोर्स यूल हैव टू फैक्टर इन बुंडेसलीगा वर्सेस प्रीमियर लीग. यूल हैव टू फिगर आउट कि पर 90 इनके स्टैट्स कैसे दिखते हैं. अगर आप पर 90 वाला चार्ट देखो, आप देखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग शेप्स ऑफ their charts are so similar, right? So Liverpool, instead of paying the premium on Alexander Isak, who is the finished product 25 years के एज पे, उन्होंने बैंक किया है हुगो एकिटिके पे एंड ईसाक फ्रॉम 2 to 3 years ago essentially, and they are hoping कि ये कोचिंग एनवायरनमेंट, ये क्लब एनवायरनमेंट will transform हुगो एकिटिके not only to an Alexander Isak level but maybe even beyond. जैसे आप चार्ट्स देखोगे, इट्स pretty similar for both of them. Maybe Ekitike is better in some aspects and Isak is better in other aspects, but it's प्रॉबली लिवरपूल का बिलीफ दैट इस कोचिंग एनवायरनमेंट में हम एकिटिके को बेस्ट दिखा सकते हैं. अगर आप एकिटिके की स्काउट रिपोर्ट चार्ट देखोगे जो आपके अभी स्क्रीन पे आएगी, ही इज़ इन द टॉप परसेंटाइल्स ऑफ मोस्ट थिंग्स यार. आप उनका नॉन पेनल्टी एक्सजी देखो, शॉट्स देखो, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस, गोल क्रिएटिंग एक्शंस, एक्सपेक्टेड असिस्ट्स, की पासेस, कैरीज, सक्सेसफुल ड्रिबल्स. दिस is not the traditional chart for a center forward. एक center forward का yes, short creating actions में, goals में, XG में, इन सब में high percentiles हो सकते हैं, but usually dribbles में नहीं होंगे, usually assists में इतने high नहीं होंगे, progressive carries में usually इतने high नहीं होंगे. But Hugo Ekitike is an all-rounder. He has the body of a winger, he has the feet of a winger, but he can also play really well at striker. But ये जो मैंने आपको स्काउट चार्ट दिखाया था और उसमें दिखाया था कि कितना हाईली रेट करता है हुगो एकिटिके XG, XA, प्रोग्रेसिव कैरीज वगैरह में, आई थिंक ये सारी परसेंटाइल्स आर द बिगेस्ट सिग्निफायर्स ऑफ वाई लिवरपूल आर एक्चुअली गोइंग फॉर हुगो एकिटिके. देखो, अगर आप स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि पूरे रिक्रूटमेंट टीम का एक ही पर्पस होता है कि कौन सा बेस्ट सूटेड प्लेयर फॉर अ सिस्टम हम चीप से चीप में ला सकते हैं. नाउ
एकिटिकी का येस आउटपुट इज़ नॉट एनीथिंग टू गो बाय. अगर आप उनके पिछले 3-4 साल का आउटपुट देखोगे, सिर्फ एक साल में आउटपुट फिर भी रिस्पेक्टेबल आया है फॉर अ टॉप प्रीमियर लीग टीम एक्सपेक्टेड टू चैलेंज फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल. बट स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में एक ऐसी चीज़ होती है वेयर रिक्रूटमेंट टीम्स हैव टू सी कि क्या ये प्लेयर का आउटपुट कम है बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल, या फिर इस प्लेयर का आउटपुट कम है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक ऐसे प्लेयर हो जो बहुत अच्छी पासिंग करता है, आप पेड्री लेवल पासर हो, ठीक है, बट आप एक ऐसी टीम में फंस चुके हो जहाँ पे फिनिशिंग ही नहीं होती. आप बॉल को आगे कैरी करते हो, आप और अच्छे से एक्सपेक्टेड असिस्ट्स गैदर करते रहते हो, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहते हो, चांसेस क्रिएट करते रहते हो, बिग चांसेस क्रिएट करते रहते हो, बट आपके स्ट्राइकर फिनिश नहीं कर पाते, या ऑपोजिशन के गोलकीपर बहुत अच्छे हैं, या फिर आपकी टीम का ओवरऑल लेवल कंपेयर टू द ऑपोजिशन इज सो लेस कि इवन दो आपकी टीम को मे बी पूरे गेम में 2 या 3 ही चांसेस मिलते हैं, आप उनको मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हो. तो एक रिक्रूटमेंट टीम आएगी जो आपको एनालाइज करेगी, और वो आपका एनालिसिस आपके ओवरऑल असिस्ट्स पे नहीं करेगी, बट ये देखेगी कि क्या अगर हम इस प्लेयर को इस बुरी टीम से उठा के, इस अंडर परफॉर्मिंग टीम से उठा के अपनी टीम में रखेंगे तो इसका आउटपुट कैसे होगा. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ विद हुगो एकिटिके. अगर आप इंटरनेट पे जाके उनका XG अंडर परफॉर्मेंस देखोगे, यू विल सी differing figures depending on कौन कैसा डेटा कलेक्ट करता है. It ranges from underperforming the XG by 5 to up to 7, which is crazy. Now XG underperformance also is largely dependent on कि आप प्लेयर कैसे हो, बट एक टीम का लेवल भी उतना अच्छा शायद से नहीं हो सकता compared to the Bundesliga. Regardless, I think what Liverpool की recruitment team has done is they have seen that this player, इसके अंडरलाइंग मेट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, अगर हम इसको सही टीम पे डालेंगे इसकी XG अंडर परफॉर्मेंस ओवर परफॉर्मेंस भी हो सकती है, ये ज़्यादा शॉट क्रिएटिंग एक्शंस भी बना सकता है दूसरों के लिए, ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्ड अप, ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल बॉल, ही कैन स्कोर द फाइनल बॉल, द गाय इज़ अ ग्रेट ड्रिबलर, द गाय इज़ ग्रेट एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लिवरपूल ने सोचा लेट्स पे सम मनी फॉर हिम. नाउ फ्रैंकफर्ट आर नोटोरियसली गुड सेलर्स. उन्होंने कोलो मुआनी को बेचा हुआ है, उन्होंने मरमूश को बेचा हुआ है, उन्होंने एकिटिके को बेचा हुआ है, उन्होंने लूका योविच को बेचा हुआ है. दे हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ स्ट्राइकर्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉमिस फॉर अ लॉट ऑफ मनी. कोलो मुआनी स्टार्ट स्टॉप, उन्होंने लास्ट सीजन लोन बिताया था यूवे पे. हुगो एकिटिके जैसे मैंने बताया था अभी जाएंगे लिवरपूल में. ओमार मरमूश हैज़ टर्न्ड द प्रीमियर लीग अपसाइड डाउन विद हिज इमीडिएट कॉन्ट्रीब्यूशन. सिटी में आके वो बड़ी अच्छी से सेल हो गई फॉर फ्रैंकफर्ट एंड अ गुड बाय फॉर मैनचेस्टर सिटी. बट अगर आप लूका योविच को देखोगे, हु वेंट टू मैड्रिड, डिडंट रियली शाइन, एंड या इट्स अ बिट ऑफ अ हिट एंड मिस. तो काफ़ी बड़ा गैम्बल ले तो रही है लिवरपूल की रिक्रूटमेंट टीम, बट विद दैट बटलैंड एंड एलिसन वाला इंसिडेंट जो मैंने आपको नरेट किया था, दिस लुक्स लाइक वन ऑफ देम एज वेल. इट डिफाइज लॉजिक बिकॉज जैक बटलैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ रियली गुड कीपर एंड एलिसन वाज बीइंग बेंच्ड बाय वोजेक शेस्नी एट रोमा. तो it didn't really make sense then and it doesn't sort of make sense now. But Liverpool की recruitment team है ही ऐसी. They have the ability to pull a rabbit out of the hat, and this is why I'm a bit looking forward to, as a neutral, how Hugo Ekitike does at Liverpool. It's a big money signing. They are replacing Nunes with him. Nunes की खुद एक बहुत बड़ा issue था XG under performance, and even though Slot or maybe Klopp couldn't really sort it out for him, maybe Ekitike is the guy. Hugo Ekitike is a versatile dude. He can play on the wings, he can play on the 9, he can bring other players into the game. ये Hugo Ekitike, if he can strike a similar partnership as he struck with Omar Marmoush at Frankfurt, with either Mohamed Salah, with either one of the wingers, let's say Diaz stays, maybe Diaz or Gakpo or Wirtz for that matter, इट्स अमेजिंग. मतलब हुगो एकिटिके जैसा ब्रिलियंट पीस और कहीं नहीं आएगा. नाउ इट्स नॉट ऑल हंकी एंड डोरी व्हेन इट कम्स टू हुगो एकिटिके's मूव टू लिवरपूल. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स आई डू हैव अबाउट हुगो एकिटिके इज हाउ ही translates his form from the Bundesliga to the Premier League. Now it's not a large sample size. He's not faced many English defenders. उन्होंने लास्ट सीजन स्पर्स के अगेंस्ट खेला था इन द यूरोपा लीग, प्लेड 2 legs. इन द फर्स्ट लेग आई थिंक ही इवन स्कोर्ड अ गोल, बट सेकेंड लेग में स्पर्स, विच आर स्टेटिस्टिकली वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंसेस इन प्रीमियर लीग, they didn't have the best defenders at that point of time under Ange Postecoglou, who himself wasn't a great defensive coach, and they managed to keep Hugo Ekitike quiet. Premier League defenses are not just about the Virgil van Dijks and Konates and Saliba, Gabriel, Diaz. It's also about the mid-table के defenders, Ethan Pinnock, Jared Branthwaite, Tarkowski वगैरह.
how he translates his skill sets and how he uses his skill set will be very, very interesting here, doston, because he is tall, but he's not especially strong. He's got a lanky build and उसने कभी ऐसा demonstrate नहीं करा, at least for me, कि वो physically compete कर सकता है इन ऐसे defenders के साथ. So maybe the test might not just be the Salibas and the Gabriels and other defenders at other top Premier League clubs. The mid-table and the lower table clubs also have some pretty robust and thick defenders जो physically harass करेंगे एकेटीके को. वहाँ पे एकेटीके की इंटेलिजेंस काम आएगी एंड देखना पड़ेगा कि कैसे वो यूज़ करते. ही डजंट हैव टू बी अ चैनल रनर, गोल स्कोरर, फिनिशर अगेंस्ट दीज गाइज. इफ ही कैन जस्ट यूज हिज बॉडी एंड nimbleness to create opportunity for others, I think that's also a great enough contribution. He's not a Erling Haaland and he doesn't really need to be. देखते हैं हुगो एकिटीके प्रीमियर लीग डिफेंडर्स के अगेंस्ट कैसे करता है. बट इट ऑल कम डाउन टू मनी एंड आई थिंक, बट ये प्राइस टैग का प्रेशर शायद से हुगो एकिटीके पे आया ना, ये हमें देखना पड़ेगा. नूनेस केम विद 65 to 75 मिलियन का कुछ था उनका प्राइस. उन पे प्रेशर था, उनका आउटपुट भी अच्छा था, बट इट वॉजेंट क्लिनिकल इनफ फॉर लिवरपूल. दे वर फ्रस्ट्रेटेड बाय हिम. एटीट्यूड इश्यूज थे, लैंग्वेज इश्यूज प्रॉब्ली होंगे. आई डोंट थिंक एटीट्यूड एंड लैंग्वेज इश्यूज आर एन इशू विद हुगो एकिटीके. मैं हुगो एकिटीके के बारे में एक ही चीज़ बोलता हूँ, ही इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग बट ब्रिलियंट फिजिकल स्पेसिमेन. टॉल है 6'2" एंड ही इज़ वेरी वेरी निम्बल. मैं जब इनकी तुलना करता हूँ, आई डू इट विद विक्टर वेम्बनयामा हु इज़ इन दी NBA, 7 foot+ dude who moves like a point guard. और अगर आपको बास्केटबॉल की तरह पता है, टॉल dudes don't usually move that agility के साथ. And same with Hugo Ekitike. He's a tall dude, probably like Peter Crouch, just a bit shorter than him. But he moves like a proper winger. He moves like a proper agile playmaker and he'll find his space. This guy can dribble the ball past defenders. This guy is spacey enough to beat defenders. He needs to be a little more clinical. But अगर इसके XG underlying stats वगैरह types बता रहे हैं, I think if Liverpool coach him properly, he will be a monster to get. Now, the scary thing is, लिवरपूल आर नॉट डन. बात ये हो रही है कि ये गेही को भी लाएंगे इसके बाद एंड देर स्टिल नॉट क्लोजिंग द डोर ऑन एलेक्जेंडर इसाक. इट्स सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट समर फॉर लिवरपूल राइट नाउ. बट या, हुगो एकिटीके, one of the best striking prospects on the market, potential to be one of the best in the world. Will he realize that potential at Liverpool? That remains to be seen. I think it's a good signing. I think if you can't get Isak, this is the second best player to get. A lot of clubs would have been interested in him at different points of time. Chelsea, Arsenal, Man United. Won't shock me if all of our clubs are also interested in Hugo Ekitike. एक बार Newcastle जा सकता था, but as soon as Liverpool came, he decided to join Liverpool. So yeah, it's the data nerds at it again. Richard Hughes, Michael Edwards, Julian Wards, they are leading this Liverpool ship. Let's see how it turns out for Liverpool, and if they make sales, let's see who else they bring in. Thank you so much for joining. Video like कर देना अगर आपने अभी तक किया नहीं है. Subscribe if you haven't already, and I'll see you all soon. Tada, see you. Bye bye. See you.